Hi, welcome to the fourth chapter on How Finance Works by Mihir Desai. The name of this chapter is Sources of Value Creation. In this chapter, we are going to learn about what are the sources where a company creates value for itself. Right. So let's get started. So in chapter one, we discussed how creating value for shareholders is an important goal for managers. But what does it mean to create value? Create it like it better understand how can we do we create or destroy it? For value creation. Let's look at Apple's stock price for the last 30 years. As you can see from the chart, Apple was not the company is still essentially. And in the early 2010s, Apple started creating value in the creative of stock. What is not well ओके सो इस पूरे पार्ट में हम लोग दो चीजों की बात कर रहे हैं फर्स्ट इज वैल्यू क्रिएशन एंड द सेकंड इज वैल्यू डिस्ट्रक्शन सो नेक्स्ट जो डायग्राम है इसको आप देख सकते हैं कि एप्पल जो है दिस वर्टिकल इज प्राइस पर शेयर तो एप्पल का जो प्राइस पर शेयर है वो 1998 से लेके 2003 के मिड तक नहीं 2003 4 5 तक ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट था उसके बाद से उसका वैल्यू धीरे धीरे उसका जो शेयर प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना 2008 में इट हैज रीच्ड अ पीक अराउंड 225 मिलियन टू $225 सो हमें इससे पता चलता है कि सपोज किसी शेयर होल्डर ने तो 1998 में इन्वेस्ट किया था एप्पल में तो उसका जो शेयर प्राइस है या फिर उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट 0 से लेके 200% 200 हुआ राइट सो टू अराउंड 2000% उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न दिया सो इन अनदर केस अगर A1 नाम का जो कंपनी है इसको देखे तो इसका जो है शेयर प्राइस ये ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा टेढ़ा चलते चलते इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स अ नेगेटिव साइकिल सो क्या हुआ राइट क्यों ऐसा हुआ ये हम लोग पढ़ने वाले हैं So during the 9-year period, Avon lost 90% of its value. Why? Clearly, there were failures to innovate and to create a sustainable business model. But how can a company lose so much value so quickly? These are two examples of extreme value creation and destruction. Provide two lessons. Neither simple or straightforward, and then brutal for finances are sometimes and was significantly overvalued for many years, and after realizing the mistake, the price fell to reflect its more accurate value. इस पैराग्राफ में कहता है कि फाइनेंस इतना सिंपल नहीं है और ये दोनों जो है ये दोनों एक एग्जांपल है एक्सट्रीम वैल्यू क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का राइट जनरली क्या होता है कि एक लीनियर कर्व मेंटेन होता है ऐसे 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 लेकिन इनकी दिस केस एप्पल का जो ग्राफ है दैट इज मूविंग अप अ स्टीपली एंड इन दिस केस इट इज मूविंग डाउन स्टीपली ओके सो और एक ब्रूटल ट्रूथ बताता है कि फाइनेंस डिफिकल्ट है और सबसे बेस्ट इक्विटी एनालिस्ट भी कभी कभार गलती कर सकते हैं और पूरे इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कि मतलब एक इंट्रो जैसा दिया हुआ है ओके कि वैल्यू क्रिएशन क्या होता है वैल्यू डिस्ट्रक्शन क्या होता है फिर किसी मैनेजर के हाथ में अगर कैपिटल पड़ता है तो उसकी उसकी उसका क्या जिम्मेदारी बनता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है राइट एंड ऑल दिस स्टफ वी हैव बीन गिवन एंड वी हैव बीन टोल्ड दैट वी आर गोइंग टू फर्दर learn about how to create value, how to destroy value, or how to utilize capital at its maximum efficiency. So, pehle, how value is created, right? So, our first measure of value creation compares a company's book value
and its market value via the market to book ratio. Okay. So how do we know that whether a company is underpriced or overpriced? By using this ratio called market to book ratio. इसमें क्या होता है कि एक किसी कंपनी के एसेट का मार्केट वैल्यू उसके बुक वैल्यू से डिवाइड करते हैं, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देन वी नो दैट इट इज overpriced, and if it is less than 1 we know that it is underpriced. Since book value are derived from accounting based balance sheet, अब इन दोनों को कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि बुक वैल्यू अकाउंटिंग मेथड से आती है, और अकाउंटिंग methods are not a reliable thing, right? This thing we have studied in chapter 1 or 2. So market value accounts for certain elements that book value does not consider. One of them being brand value, right? If you remember, we studied that how brand value is being ignored in case of accounting due to conservatism principle. So while the market, see here, so in this case, it is a good depiction of difference between book value and market value. In case of first balance sheet, we see that this is Facebook's balance sheet, and cash is $41.7 billion dollars. Operating asset is $42.8 billion dollars, and total is this. Liability, in case of liabilities, operating liabilities is $10.2 billion dollars, and shareholders equity 74.3. So total is 84.5. But in case of this was book value. Now in case of market value, let's see assets. So cash is 41.7, which is the same as here, but enterprise value, which is inclusive of, let's say, brand value, customers perception of our brand. So all these things inclusive makes it for $471.1 billion dollars, and the same is reflected in shareholders equity, right? So this is what difference market value makes. Okay. Now let's consider a company that relies solely on equity financing. The firm has a book value of 100, as it has just been capitalizing with 100. The return on equity is projected to be 20%. The company is expected to reinvest is 50% of its profit in the company. These in reinvestments represent growth opportunities and earn similar returns to its current return on equity. The company will end its operation after 10 years, and anything that's left will be distributed to the shareholders, and it will sell off its asset for a one-time cash flow. तो यहाँ पे क्या किया है कि एक हाइपोथेटिकल केस लिया है एक कंपनी का, जो कि जिसका बुक वैल्यू है $100, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी का प्रोजेक्टेड है 20%, उसका कंपनी जो है 50% प्रॉफिट री इन्वेस्ट करती है कंपनी पे, ओके। और 10 साल बाद कंपनी जो है अपना ऑपरेशन खत्म करेगी, एंड इट विल सेल ऑल ऑफ इट्स एसेट्स फॉर वन लाइफ टाइम कैश फ्लो। एक ही बार में 10 साल बाद सारे एसेट्स को बेच देगी, और फ्यूचर कैश फ्लो विल बी डिस्काउंटेड एट अ रेट ऑफ 15%। 15% पे जो है कैश फ्लो इसका डिस्काउंट किया जाएगा। तो क्या होगा इसका, राइट? So if you see that 15% is the discount rate, and 20% is the return on equity, right? तो अगर हम इसका let's say net present value calculate करें, तो it will come out to be uh, positive, okay, because since the interest rate of generating, right, for example, discount rate is 15% and return on equity is 20%. So return on equity is greater than discount rate, and therefore it is likely that the net present value is coming out to be positive, right? So
that is what is needed for value creation. That it in order to uh, in order to determine the in order to determine whether a firm has the ability to generate value, we have to consider its net present value. Also, पढ़ लेते हैं एक बार. So what should this company's market to book value ratio be? That is the company's creating value. To make things simpler, concrete presentation of the figure. तो ये डिटरमाइन करने के लिए कि इसका मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वी नीड टू नो द मार्केट वैल्यू. अब मार्केट वैल्यू पता करने के लिए क्या करना चाहिए? टेक द इनिशियल बुक वैल्यू 100, अप्लाई 20% ROE and then distribute half to shareholders and reinvest the other half in the company. Then apply the 15% discount rate to those dividends. Do this for the first year until the 10th year, and when whatever is left in the company is liquidated and returned to the shareholder. So ये जो पूरा प्रोसेस है, आई थिंक नेक्स्ट में दिया हुआ है. सो हम क्या करेंगे, हम पहले 20% इनिशियल वैल्यू लेंगे, उससे 20% ROE का जो फॉर्मूला है हमने पढ़ा था उसको लगाएंगे, उसको फिर डिस्काउंट करेंगे 15% से, और वो जो वैल्यू आएगा हमारा, दैट विल बी आवर मार्केट वैल्यू, है ना. In this particular case, today's market value based on those expectation of what's going to be happening in the future is greater than 100, which leads to market book value greater than 1.3. Is there a simple way to conclude this without creating a full spreadsheet chart? If you create a spreadsheet as in the previous example, you will see that market value will drop to 100, which is the same as its value, book value. To be clear, it drops to exactly 100. That is no coincidence. You might think that. तो हमें कहता है कि अगर हम यहाँ पे 20%, सी यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 20% प्रोजेक्टेड था, अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी को 15% ले लेंगे तो इसका जो मार्केट वैल्यू है दैट विल बी एग्जैक्टली 100. ओके. एंड हेंस इट्स यू नो मार्केट टू बुक वैल्यू विल बी एग्जैक्टली 1. और अगर ROE कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है, right, then the company is not creating any value. So that is why, as I said, that net present value has to be positive for that project. If ROE were to drop even more from 15% to 10%, and the market value would dip below 100, making market to book value less than 1, this is an even worse scenario. इसका मतलब है कि आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए था, है ना, अगर मार्केट टू बुक वैल्यू लेस देन 1 हो रहा है. What else matters in value creation? So let's see what else matters in value creation. तो मार्केट टू बुक एक मेथड है एसेस करने का कि whether the company is earning, creating value or destroying value. If it is, as we learned, if it is greater than 1, that means the company's assets are undervalued, and it will soon boost its share price, because the investors or people will come to know about the exact situation that its assets are underpriced, and it will soon boost up. But what are the other methods apart from the market to book value, right? So here we will study. So
यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे तो यहाँ पे इस टेबल 4.3 जो है इसमें एक कंपैरिजन दिया है कि जो है हम 50% वैल्यू वापस से री इन्वेस्ट करेंगे, और 10%, 15%, 20% और 25% में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, और 30% ऑफ द अर्निंग्स आर री इन्वेस्टेड। यहाँ पे इन दिस केस 70% अर्निंग्स आर री इन्वेस्टेड, इन दिस केस 100% अर्निंग्स आर री इन्वेस्टेड। हम पढ़ेंगे कि तीनों केसेस में एग्जैक्टली क्या होता है, राइट। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा टेबल ब्लैंक है, और टेबल 4 में यहाँ पे एक दिया गया है कि क्या सीन है। So you can, if you remember that 20% was our discounting rate, and sorry, 20% was our return on equity and 15% was our discounting rate. So यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि 15% पे जो है 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, नो मैटर आप कितने भी साल प्रोजेक्ट को चलाते रहो, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू का जो रेशियो है दैट विल बी 1। बट डज दैट नेसेसरीली मीन कि हम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिट में चल रहा है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 years तक अगर हम देखें, व्हेन 30% ऑफ द अर्निंग्स आर इन्वेस्टेड, तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न है दैट इज हियर व्हेन वी हैव 25% रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, सो एक और बात जो यहाँ से पता चलता है कि आपको लगेगा शायद ये वाला सबसे बेकार री इन्वेस्टमेंट है, राइट। लेकिन ये वाला मतलब सबसे बेकार बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू रेशियो है। बट ये नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ 30% ऑफ द अर्निंग्स आर री इन्वेस्टेड। एक्चुअली ये सबसे बेकार रेशियो है, क्योंकि 30% अर्निंग्स जो री इन्वेस्टेड है, एक तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं आ रहा है, राइट। दूसरा, हम 30 साल से ऐसे ही काम चला रहे हैं। सो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस फिगर में 12.2 जो है दैट इज द यू नो हाईएस्ट बुक value to market value ratio, because 100% of the earnings are reinvested and 25% are is the return on equity and 15% is the cost of capital, and hence we have so much surplus, and that is why we are just multiplying our assets. Okay, और सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पे है। और ये वाला मिडिल वाला जो केस है, ये थोड़ा यूनिक केस है, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू ना क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। यहाँ पे जो है 10% वाले में वैल्यू लगातार डिस्ट्रॉय हो रहा है, और इस वाले टेबल में कंपाउंडेडली डिस्ट्रॉय हो रहा है वैल्यू। यहाँ पे माइल्डली 20% वाले में माइल्डली वैल्यू क्रिएट हो रहा है, 25% में हाईली वैल्यू क्रिएट हो रहा है। 3 ways टू क्रिएट वैल्यू। तो 3 वेज होते हैं वैल्यू क्रिएट करने का। वो क्या होता है हम लोग अभी पढ़ेंगे।
तो वो तीन वेज कौन कौन से है वैल्यू क्रिएट करने का? पहला है कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि 15% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल था और आप अगर 10% पे ऑपरेट करोगे तो इट डजेंट मेक सेंस, राइट? आपका अगर 10% फोरकास्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, so that will not work because your cost of capital is not even recovered and you will operate in losses. If they don't, nothing else matters. Second, they must beat their cost of capital for many years, और ये जो कर रहा है ये बहुत सालों से करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा. And third, they must reinvest additional profits at a high rates through growth. और जो एडिशनल प्रॉफिट है वो वापस कंपनी पे ही री इन्वेस्ट करना पड़ेगा. So these are the three methods of value creation. First is कि cost of capital must be recovered. Second is एक सेकेंड, cost of capital must be recovered, right? So इन इस तरह से लिख लेते हैं कि return on equity must be greater than cost of capital. Second जो है that is the first step should be followed for many years. And third जो है that is reinvest करना होता है. So these are the three methods of value creation. अब हम लोग डीपर डाइव इनटू द कॉस्ट्स ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे. तो कॉस्ट्स ऑफ कैपिटल हम लोग जब ये वर्ड सुनते हैं हमें हमारे दिमाग में क्या आता है कि कैपिटल को एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट हमें उठाने पड़े हैं उसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं. ओके. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर क्या आता है? पहला तो आता है कि इंटरेस्ट रेट आ गया कि हम शेयर होल्डर्स को क्या पे करेंगे. दूसरा आता है व्हाट यू कॉल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके. एंड देर आर मेनी अदर लाइक फॉर एग्जांपल हम कैपिटल को और भी बहुत सारे मतलब सबलिमिनल कॉस्ट्स आते हैं. ओके. तो पढ़ लेते हैं एक बार. दिस एक्सरसाइज शोज दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज क्रिटिकल टू वैल्यू क्रिएशन. Managers apply discount rates to penalize future cash flows, as we saw in chapter 2, because there is an opportunity cost to any investment. Those discount rates are often referred to as cost of capital because they refer to penalties associated with deploying that capital. Where do those discount rates, the cost of capital, come from? Because that firm have two types of capital providers. तो यहाँ पे मोटा मोटा कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. जो इंटरेस्ट रेट आपको शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा दैट इट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी. और कैपिटल जो स्ट्रक्चर है दैट इज टू टाइप्स मेनली, डेब्ट एंड इक्विटी. और ये दोनों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अलग होता है ना. तो हम हमें पता कैसे चलता है कि कोई प्रोजेक्ट का या फिर कोई इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, राइट? सो इन दैट केस हम क्या करते हैं कि प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल विल मेजर द रिस्क दैट दे आर एक्सपोज टू. उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस हद तक रिस्क में एक्सपोज होता है.
और उसके हिसाब से ही हम लोग जो है कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि अगर आपको 1 मिलियन बाई मतलब फॉर मतलब राइट अवे 1 मिलियन दिया जाएगा, या फिर 50-50 चांस है आपका 2 मिलियन लेने का, तो आप कौन सा जो है ऑप्शन चूज करोगे? तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल चूज 1 मिलियन स्ट्रेट अवे। नाउ while it is tempting to think otherwise, if this was a real scenario, yeah, that I said. So, but how do we actually operationalize the cost of it? How do we measure that? This question has to sound the elegant ideas. So, हम जो है वो रिस्क हम, जैसा कि मैंने बोला कि आपको अगर 100 रुपीज राइट अवे दिया जाए, या फिर 50-50 चांस है कि आपको या तो 0 मिलेगा या फिर 200 मिलेगा, तो मोस्ट ऑफ अस विल प्रेफर 100 रुपीज। एंड क्योंकि हम लोग ये रिस्क ले रहे हैं कि हमें 0 भी मिल सकता है, तो दैट इज वाई वी नीड टू compensate, in order to compensate for that possibility कि हमें 0 भी मिल सकता है, we demand a higher rate of return on our investments। कहने का मतलब ये है कि इस एक पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में जितना रिस्क होता है उतना ही ज्यादा रिटर्न होता है, एंड दैट इज द कॉमन कॉन्सेंसस। उसके बाद हम आते हैं, तो हमने पढ़ा कि अभी तक हमारे दो तरह के जो है वो दो तरह के जो है कैपिटल उठाने के प्रोसेसेस होते हैं। द फर्स्ट इज डेब्ट एंड दूसरा इज इक्विटी। अब दोनों के लिए अलग अलग जो है मेजर्स लिया जाता है कि किस में कितना इंटरेस्ट रेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोसेस पढ़ेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो इट इज अ मेजर ऑफ, इससे क्या होता है कि हम इससे इक्विटी का कितना परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो एसेस कर सकते हैं कुछ हद तक। वेटेड एवरेज, इसको WACC बोला जाता है इन शॉर्ट। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC is the most common way to discount future cash flows, but is also one of the mysterious ways that people rather to intimidate others. The phrase implies multiple sources of capital. We know that there are two types of capital, अच्छा, तो WACC को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ यू कैन सी दैट WACC का एक फॉर्मूला है, WACC equals debt by debt plus equity into cost of debt into 1 minus T। T क्या है इसमें? कॉर्पोरेट टैक्स रेट, प्लस इक्विटी बाय डेट प्लस इक्विटी into return on cost of equity। Okay, so this is the weighted average cost of capital. The cost of debt and equity are the expected returns. For now, simply think about the weights as a share of total financing needs that come from debt and equity. The tax terms requires a little more explanation. तो हमने पढ़ा कि ये है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट इज डेब्ट बाय डेब्ट प्लस इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ डेब्ट 1 minus T, which is tax, plus equity by debt plus equity into cost of equity, है ना? So cost of debt और cost of equity are expected returns basically। कि cost of debt, for example, डेप्ट पे हमें लेट्स से 10% मतलब हमारे डेटर्स को जिससे हमने पैसा लिया उनको 10% देना पड़ेगा एनुअली। सो इन दैट केस दैट 10% बिकम्स आवर कॉस्ट ऑफ डेप्ट, एंड इन द सिमिलर इज केस विद इक्विटी एज वेल। अब टैक्स का क्या होता है कि टैक्स 1 माइनस टी, क्योंकि ये डिस्काउंटेड होता है। अब क्या होता है कि हम टैक्स इज अ लायबिलिटी फॉर अस, एंड इंटरेस्ट से क्या होता है कि टैक्स कुछ हद तक डिडक्ट होता है। ठीक है, तो दैट इज वाई टैक्स इज डन हियर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स से
20% is 20% of a company's यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि 20% of a company's financing is debt that costs 10%. So 20 debt by 80 plus 20 into RD, that is cost of debt, which is 10% into tax rate is 10%. So 1 minus 0.1, 10%, right? 10 by 100, so 0.1, or plus equity, that is 80 by 100 into return on equity, which is 20%. So हमें इससे पता चलेगा कि it is 0.2 into 10 into 0.9 plus 16. So 16 plus 2 into 0.9, that is 1.8. 1.8 plus 16 becomes 17.8, है ना? So this is how weighted average cost of capital is counted. But हमें ये this is fairly simple. What is difficult is determining where do these weights come from? Where do those cost of debt and equity come from? If equity is a residual claim, then how can you capture the cost of equity? What is more expensive, debt or equity? So all these questions we are going to deal with in this chapter. So पहले हम आते हैं cost of debt पे, ठीक है? So यहाँ पे जो एक एक एलिमेंट है वो हम लोग एसेस करेंगे. So cost of debt क्या होता है? Cost of debt is basically जो डेप्ट का रिटर्न होता है. ओके, जैसे कि मैंने बताया, सपोज 10% डेटर्स क्लेम दैट आपको 10% जो है हमारे इन्वेस्टमेंट के बदले आपको देना पड़ेगा. So that 10% becomes our cost of capital on debt. Cost of To arrive at an interest rate, a bank will examine the riskiness of the underlying business, the stability of its cash flows, and its credit rating. Then it will charge an interest rate commensurate with that risk. Technically, that interest rate is promised return, and there is a probability that the issuer will default. That interest rate has two components that correspond to the reasons we penalize cash flows or making us wait. Return on debt is equal to return risk-free plus credit spread, where return on debt is cost of debt and our risk-free equals risk-free rate. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन डेब्ट जो है RD जिसको कहते हैं, तो दिस इज रिटर्न ऑन रिस्क फ्री प्लस क्रेडिट स्प्रेड. ओके, सो रिस्क फ्री क्या होता है कि आप अगर ये ऑल्टरनेटिव लेट से हम 100 रुपए इन्वेस्ट करें किसी कंपनी के डेब्ट पे, अगर वो हम लोग इन्वेस्ट करें किसी रिस्क फ्री सोर्स में, ओके, सो वहां से कितना इंटरेस्ट मिलेगा प्लस क्रेडिट स्प्रेड, मतलब कितना क्रेडिट, मतलब क्रेडिट स्प्रेड मतलब बेसिकली इट्स क्रेडिट रेटिंग, ठीक है? तो कितना क्रेडिट स्प्रेड मींस एक ऐसा नंबर जो विच इज अलाइंड विद द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बिजनेस. तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि आप कितना सेफली हमें वो रिटर्न दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद रिस्क फ्री रेट क्या होता है? सो रिस्क फ्री रेट जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर ऐसे कोई रिस्क फ्री जो सोर्सेस है वहां पे इन्वेस्ट करने का रेट. Credit spread. A credit spread reflects the additional cost associated with the riskiness of the debt. As you might expect, riskier companies feature high credit spreads. In mid 2018, US Treasury with a maturity of 10 years were yielding 2.96%. At that time, Walmart, an AA rated company, the typical rating system begins with AAA, descends to A to BBB, and so on. 16 million
debt to three Flipkart and paid interest of 3.55%. Okay, so implying a credit spread of 5.9%. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि यूएस में क्या होता था कि 2018 में यूएस ट्रेजरी में जो इंटरेस्ट रेट है वो 2.96 आता था, और एट द सेम टाइम जो है वॉलमार्ट एक कंपनी है, उसका इंटरेस्ट रेट था, मतलब उसका डेप्ट रिपेमेंट था 3.55%। तो इसके साथ इसको माइनस कर सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्रेडिट स्प्रेड निकल के आता है कि इस क्रेडिट रेटिंग के अगेंस्ट में हम कितना सेफ है इस कंपनी को लेंड करना। सो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हमने पढ़ा कि अभी तक हमने पढ़ा कि कंपनी दो तरीके से अपना जो है कैपिटल इशू कर सकती है। फर्स्ट है डेब्ट, दूसरा है इक्विटी। दोनों का अपना अपना तरीका होता है रिस्क असेस करने का और इंटरेस्ट रेट निकालने का। तो एक कंपनी के लिए कौन सा ऑप्टिमल, कैसा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। सो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। और डेब्ट और इक्विटी दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स है, राइट। फॉर एग्जांपल डेब्ट लेने का बेनिफिट यह है कि आपको जो है टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इक्विटी इशू करने का यह है कि आपको यू डू नॉट हैव टू कंपल्सरीली पे टू योर शेयर होल्डर्स, राइट। तो इन दोनों का एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन जो है, इट इज डिपेंडेंट ऑन टैक्स, राइट। एक बहुत ज्यादा हद तक टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो डेट ले रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट हम लोग करते हैं, उस वो इंटरेस्ट रेट किस हद तक हमारे टैक्स को जो है वो इंसुलेट कर पा रही है ना। तो पूरा यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक यही बात समझाया गया है कि टैक्स से हम जो डेट लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट हमारे टैक्स सिस्टम को कितना कवर कर पा रहा है, कितना इंसुलेट कवर कर पा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि सेम चीज समझाता है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा डेब्ट लेने की कोशिश करते हैं और टैक्स इफेक्ट्स को हम लोग बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है, तो जो है ये ग्रीन लाइन है जो नीचे जा रहा है। रेड लाइन को आप देखो तो वैल्यू विद टैक्स इफेक्ट्स एंड कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, तो ये ऊपर इट इज लाइक काइंड ऑफ अ पैराबोला। और ये है द मिडिल ग्राउंड इज वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म जो कि डेप्ट ले ही नहीं रही उसके साथ। मतलब ये एक ओवरऑल कंपैरेटिव एनालिसिस है कि कोई फर्म जो बिल्कुल डेप्ट नहीं ले रही उसके साथ क्या उसके कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करती है एक फर्म जो कि डेप्ट लेती है। और उस फर्म को डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस में असेस किया गया कि जब टैक्स इफेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है, जब नहीं किया जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट जैसा, मतलब थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेप्ट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वेदर और नॉट, यू नो, whether or not the tax is able to it is able to subsume the tax. But cost of equity में क्या केस होता है कि we can't just ask equity holders for the return they would like. हम लोग डायरेक्टली जाके नहीं कह सकते इक्विटी शेयर होल्डर्स की से कि आप कितना रिटर्न लोगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं वही हम लोग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं। The amount of equity investors charge for risk has two commodities components: quantity of risk of a given stock and the price of that risk. ओके, सो इन दोनों को अलग अलग हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले रिस्क, रिस्क क्या होता है। सो रिस्क अगर आपको सिंपल शब्दों में मतलब मतलब सिंपल भाषा में रिस्क का मतलब होता है कि बेसिकली रिस्क 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 होता है, राइट। मतलब कितना आप आपका
प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितना है कोई इन्वेस्टमेंट। if you had to come up with a way to measure the risk of holding of a given stock, what would it be? If you had all the data in the world, what would you try to isolate to figure out? Uh, तो रिस्क का मतलब बेसिकली होता है कि हम हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द इन्वेस्टमेंट कितना है, राइट। इसलिए इनफैक्ट इसलिए हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं हमारा पोर्टफोलियो एज एन इन्वेस्टर, ताकि हम लोगों का लॉस जो है वो किसी एक कंपनी की वजह से बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, है ना। सो हमारे इस किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का रिस्क उसके स्टॉक्स की रिलेटिव वोलेटिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। वोलेटिलिटी का मतलब है कि कितना उतार चढ़ाव होता है उस पार्टिकुलर स्टॉक में, राइट। सो हाँ, तो यहाँ पे यही बोला है कि रिस्क क्या होता है और वाई डू वी डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो टू अवॉइड रिस्क, राइट। सो यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट का के बारे में मेंशन किया है कि बीटा। तो बीटा क्या होता है कि ये एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर रिस्क ऑन इक्विटी मेजर करने का एक तरीका होता है। और बीटा बेसिकली आइडेंटिफाइज द कोरिलेशन बिटवीन अ स्टॉक्स प्राइस एंड द मार्केट एवरेज। अगर किसी कोई कंपनी का जो मार्केट एवरेज है, सॉरी मार्केट परफॉर्मेंस है, मार्केट डाउन जाती है तब कोई स्टॉक अप होता है, देन इन दैट केस द the particular company stock has a positive beta, right? And if beta is greater than one, that means it will perform well when when the market performs well. If beta is less than one, that means it will perform the stock will perform well if the market performs bad, and vice versa. And if it is equals to one, that means it will perform according to the market, पूरा मार्केट के एवरेज के साथ, क्या बोलते हैं उसको, कोरिलेटेड है, अलाइंड है, ठीक है। See here, the measure of how a market stock moves with the market is called a beta. More precisely, if a company has beta of 1, it generally moves in sync with the market. If the market goes up by 10%, the company stock is likely to go up by 10%. If a company has a beta of 2 and the market goes up by 10%, तो कंपनी का स्टॉक जो है that will go up by 20%. If a company has beta of -1 and the market goes up by 10%, then the stock will go down by 10%, right? So जैसा कि मैंने बताया कि बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है, that means market up, share price also up. It is less than 1%, it means market down, share up. And if it is basically it is the elasticity of share price, right? Similarly, when it is equals to 1, in that case, market equals to share. Calculating betas. A beta is surprisingly easy to calculate. कैसे किया जाता है बीटा को कैलकुलेट? Every dot in the figure corresponds to a month, and every dot in the figure corresponds to a month and the associate returns for the market and the company during that month. Look at the graph where you can find. See here, इसकी बात कर रहा है। ये जो हर डॉट है, ये डॉट्स एक एक मंथ को कोरेस्पॉन्ड कर रहा है। सो कैसे कैलकुलेट करते हैं बीटा हम लोग देखेंगे। सो
Remember that a beta measures the correlation between a given market's returns and company's return and market's return. If you simply draw a line that best fits the data, also known as a regression, the slope of that line is going to capture what beta is, literally how the company co-moves with the market. So beta का calculate करना is equal to doing a regression analysis of the stock prices of the company according to market volatility, right? अब यहाँ पे दो कंपनी का एग्जांपल दिया है कि AIG जो एक फूड रिटेलर है, सॉरी, AIG जो एक इंश्योरेंस कंपनी है और यम जो कि एक फूड रिटेलर है। अब यहाँ पे दिया है कि AIG का इक्विटी बीटा इज अराउंड 1.65, ओके, while Yums is around 0.67. Why are two betas so different? It helps to remember what beta is measuring. Correlation and overall market. Yums restaurant, KFC and Taco Bell. Yums का जो देखिए AIG का इक्विटी इतना अच्छा, AIG का जो बीटा है वो इतना अच्छा है, जबकि यम का 0.67 है। अब ये क्यों है? अब क्या ये सच में मतलब जितना ज्यादा बीटा होगा उतना बढ़िया है? ऐसा नहीं है, नॉट नेसेसरली, क्योंकि अ पॉजिटिव बीटा इंडिकेट्स दैट जो मार्केट के ऊपर आपका स्टॉक का प्राइस डिपेंड करता है, ओके, एंड हायर बीटा जनरली कोरिस्पॉन्ड्स टू लोअर शेयर प्राइस, ओके, जबकि कंपैरेटिवली लोअर बीटा और इवन नेगेटिव बीटा फॉर दैट मैटर इज गुड, बिकॉज ये डायरेक्टली ट्रांसलेट करता है कि इसका जो शेयर प्राइस है इट इज good and it is going to outperform when the times are bad, right? यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज के नाम दिए हुए हैं और उनका बीटा दिया हुआ है। सो फूड एंड स्टेपल रिटेलिंग का 0.6 बीटा आता है, यूटिलिटीज का 0.6 बीटा आता है, हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स का 0.7 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो बीटास क्या इंडिकेट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एक लो कंपैरेटिवली लो बीटा जो है दैट ट्रांसलेट्स रफली टू द फैक्ट दैट जैसा कि इफ मार्केट इज गोइंग टू डाउन परफॉर्म, इफ मार्केट इज गोइंग डाउन इन द फ्यूचर, देन there is a possibility that the particular industry or the particular company will perform better, right? So that is the basically the entire idea behind using beta, or and if the beta is higher, then it moves according to the market trends. अगर मार्केट नीचे जाती है तो हमारा स्टॉक प्राइस भी नीचे जाएगा। से यहाँ पे दिया है नेगेटिव बीटास एसेट्स आर स्पेशल बिकॉज व्हेन द वर्ल्ड फॉल्स अपार्ट दे रियली डिलीवर फॉर यू। उसके बाद हम आते हैं द प्राइस ऑफ रिस्क पे। तो यहाँ पे भी यही दिया गया है। इन दिस सेंस मच ऑफ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज अबाउट इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस का मतलब यहाँ पे है कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट बचाती है या फर्दर गिराती है, राइट? सो दैट इज द बेसिक आइडिया। The price of risk. Now that we can measure the quantity of risk associated with a company by using a beta, we need to combine the quantity of risk with a price of risk to figure out the cost of equity. The price of risk is also known as market risk premium. People calculate this in different ways, but here is one that calculation that shows how we can think about the price of risk. Let's consider historic. Okay. So यहाँ पे दिया है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या होता है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बेसिकली determines the cost of equity. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि या फिर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिस्क फ्री, विच इज हमने पढ़ा था कि कोई गवर्नमेंट एसेट में हम लोग जब इन्वेस्ट करते हो तो दैट इज रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम।
ओके, सो मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है कि इट इज अ बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर विच डिटरमाइंस कि मार्केट रिस्क कितना, मतलब व्हाट इज द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो it is basically a rate which is arrived at after considering the possible risks behind that investment. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली ये इसी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बारे में बताया गया है पूरा। यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे कि देख सकते हैं कि that risk return is 4% and the market risk premium is 7%. In this case, अच्छा, AIG और यम का ही यहाँ पे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेजर कर है कि 4% प्लस 1.65 इंटू 7% is 15.55%, which is the cost of equity. और ये जो पार्ट है इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। ये पार्ट क्या दिखाता है कि हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न और रियलाइज्ड रिटर्न के का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड अल्फा। यहाँ पे दिखाया, देखिए, नोट दैट जीरो बीटा assets have an expected return equal to risk free rate. Okay, according to active investment management is all about pursuing assets that deviate from the line and deliver more than the expected return. This gap is called alpha. Alpha is the source of value creation, as isolating it means you're delivering greater than expected return. So अल्फा जैसे कि मतलब मैंने बताया कि अल्फा इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रियलाइज्ड रिटर्न। ओके, कि पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो और कितना आपको मिल रहा है। एंड एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि इस अल्फा जो गैप है इसको मैक्सिमाइज करना। हम्म। अब हमने पढ़ा कि वर्किंग सॉरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाला और हमने देखा कि कैसे वो निकालते हैं। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स है WACC को निकालने का, तो वो क्या क्या है। फर्स्ट इज यूजिंग द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट। सो WACC को यूज करने का जो पहला मिस्टेक है, दैट इज यूजिंग द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट। तो सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने पढ़ा कि कैसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। सो first mistake managers tend to make is to use the same cost of capital for all projects they invest on. The logic usually goes somewhat like this. Well, my capital providers have expected returns, so that cost of capital, no matter what I invest in, has to be same for all my investment project. So basically पूरे इस जो एरिया है इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली आपको कन्विंस कराता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हर इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट होता है, राइट? क्योंकि हर इंडस्ट्री का बीटा जो है दैट इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर आप सेम सेम जो है इन्वेस्टमेंट करते हो तीन इंडस्ट्रीज में, देन यू विल अंडर इन्वेस्ट इन वन इंडस्ट्री एंड ओवर इन्वेस्ट इन अनदर इंडस्ट्री, राइट? सो दिस इज व्हाई यू शुड इंडिविजुअली कैलकुलेट योर वर्किंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा जो मिस्टेक है जो लोग करते हैं, दैट इज लोअरिंग योर WACC बाय यूजिंग मोर डेप्ट। तो ठीक है, डेप्ट यूज करने से एक हद तक होता है कि हमें टैक्स का कुछ मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग डेप्ट ही ज्यादा से ज्यादा यूज कर लें, राइट? हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे एक कंपनी को कम डेप्ट मिला तो वो डेप्ट ही लेता चला गया। बट फॉर द मेन टाइम
Another appealing but incorrect intuition is that a company can lower its WACC by using more debt, given that debt has a lower cost than equity. The thinking usually goes like this: debt is typically cheaper, and with a tax advantage, even more so. So if I just use more debt, I will reduce my WACC, and as a result, I will end up having a higher value. लेकिन ये जो लॉजिक है कि डेप्ट चीपर होता है, और अगर मैंने ज्यादा से ज्यादा डेप्ट लिया तो मैं ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाऊंगा, तो ये गलत है नोशन। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री लंच नहीं है। इफ अ कंपनी इज एट द ऑप्टिमल capital structure, it cannot simply take on more debt because it's cheaper and think that's smart. Equity holders will demand a higher return for that risk, and that will actually offset any benefit. So ज्यादा से ज्यादा डेप्ट लेने से क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो ज्यादा रिटर्न मांगते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इक्विटी होल्डर जो है ज्यादा मांग कर बैठते हैं। Okay, so that is why this is also a stupid idea to increase more debt to lower WACC. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फिगर दिया है कि ये एक एसेट बीटा है और इक्विटी बीटा कैसे अपवर्ड ट्रेंडिंग जा रहा है, राइट? Remember that a beta is measure of correlation between an instrument's returns and markets. First, let's think about asset beta, which measures how the operating asset co-move with the market's return. How does an asset beta change as you use more debt? The answer is that it doesn't change. The behavior of the asset relative to the market doesn't change as financing changes. This is similar to the intuition for flat line in figure 4.3. What do you think happens to debt betas and equity betas as a company increases reliance on debt? To think this through, consider the extremes. What happens when firm is fully equity financed? What about when it uses very little equity? To consider this, further anchor your thinking in the beta of the business, the asset beta as well. The orange curve represents what we think of debt betas. When a company takes on that first dollar of debt, it's relatively risk-free, so debt betas are close to zero. As a company approaches complete debt financing, debt betas approach the level of asset betas, and as the company is entirely debt financed, the final piece is, what do equity betas look like? When there is no debt or very little debt, equity betas look a lot asset betas. And what happens to as leverage increases? Equity betas shoot up as the equity has become more risky. So यहाँ पे कहता है कि जो है ज्यादा से ज्यादा डेप्ट लेने का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो डेप्ट बीटा जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, डेप्ट बीटा जो है इंक्रीज हो जाता है जस्ट एस इक्विटी बीटा भी इंक्रीज हो जाता है जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा इक्विटी लेते हो, राइट? और हमने पहले भी पढ़ा है कि बीटा इज जितना क्लोज टू जीरो या फिर जितना नेगेटिव होगा उतना बढ़िया है इन्वेस्टर्स के लिए। Exporting WACC. The final mistake managers make is thinking that they can, ये mistake number 3 है, right? So make that they can add value by buying another company and applying their WACC to its cash flows. Here is how the thinking works. I am bidding for an asset. Another company is also bidding for an asset. I have got a lower cost of capital than they do because of my business. I am going to able to get this deal done and actually win the bid because I will be using my cost of capital, which is lower than theirs. The right cost of capital has nothing to do with the company or the alternative bidder. The right cost of capital has everything to do with the asset what the managers are buying, and that should be the same for the two buyers. There is no way the company can export its cost of capital to that asset. The cost of capital is not about who you are; it's about what you are investing in. ओके, सो यहाँ पे कहते हैं कि जो फाइनल मिस्टेक जो कंपनीज बनाती है दैट इज WACC को एक्सपोर्ट कर देना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे किया जाता है ये कि किसी कंपनी का जो
किसी कंपनी को एक्विज कर लेना या फिर खरीद लेना ऑन द होप दैट मेरा जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो मैं अगर इसको एक्वायर कर लूंगा तो दोनों को मिला के जो है मैं और इजिली ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जो है उठा पाऊंगा एट लोअर कॉस्ट। बट ये जो है गलत है, क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपली दिया हुआ है। देखिए कि इट्स नॉट अबाउट the cost of capital is not about who you are, but it's about what you are investing in. Okay, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने नए न्यूली एक्वायर्ड कंपनी को का जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली शेयर होल्डर्स को पब्लिक कर दिया, तो वो दोबारा से एसेस करेंगे। और अगर उनको लगा कि किसी पॉइंट पे मेरा जो एसेट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ढीला है, तो वो अकॉर्डिंगली मेरा जो है क्या मेरे इन्वेस्टमेंट को रैंक करेंगे अकॉर्डिंगली। Okay, so now that we are theoretically done with the chapter, now we are going to cover some of the case studies. तो कॉर्निंग जो कंपनी है वो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि ग्लास बनाती है और बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करती है, क्योंकि सैंड को यूज करती है और ग्लास में ट्रांसफॉर्म कर देती है। सो इट इज अ ग्रेट डील ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। सो Corning was the leader in market display glass for electronics, and after examining the company's financial and what the future held, equity analyst Albert Moelle determined that the company was trading below book value. As we saw, तो हमें याद है कि यार हमारे जो एनालिस्ट मोएल है उन्होंने हमें रिकमेंड किया था कि आप ज्यादा से ज्यादा खरीद लो इस कंपनी का शेयर, क्योंकि इस ये कंपनी जो है आगे जाके अच्छा परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि करेंटली इसका जो एसेट है वो अंडर वैल्यूड है, राइट। और क्यों अंडर वैल्यूड है, तो ये सवाल पहले क्यों आया था अगर आपको याद होगा, तो कॉर्निंग ग्लास का जो एंड कस्टमर है दैट इज एलजी, कंपनीज लाइक एलजी हु आर द फाइनल कस्टमर्स, बिकॉज वो ग्लासेस लेके अपने फोन पे चिपकाती है ना। तो एलजी जो है, एलजी का डिमांड कम हो रहा था, इसलिए लोग थोड़ा विचलित हो गए इन्वेस्टर्स की अब इसका इसका जो मतलब कस्टमर है उसका मार्केट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो शायद ये भी डूब जाएगा कंपनी। लेकिन मोएल जो है हमारे एनालिस्ट, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, और आप ये इस कंपनी का एसेट जो है अंडर अंडर प्राइस्ड है और आप इसको बाई कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। सो फॉर अ कंपनी ट्रेडिंग बिलो इट्स बुक वैल्यू like Corning, some might argue that it should shut down and sell its asset at the book value. Why do you think Corning continued to run its business despite a ROC, return on capital, less than cost of capital? तो कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि अगर इस तरह शेयर का प्राइस अंडर या फिर एसेट का प्राइस अंडर वैल्यू होता है, तो हमें जो है अपना एसेट बुक वैल्यू पे सेल कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमें हमें पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 100 रुपीज का लेट से एसेट पड़ा हुआ है जिसको अकाउंटिंग करते वक्त सिर्फ 50 रुपए ही दिख रहे हैं, ठीक है। अकाउंट क्योंकि ब्रांड वैल्यू कैलकुलेट नहीं होता, बहुत सी चीजें कैलकुलेट नहीं होती, सो अकाउंटिंग करते वक्त, सो अंडर वैल्यू है, तो जनरली कंपनीज क्या करती है कि बेच देती है 50 रुपीज कंपनी को 100 रुपए में बेच देती है और निकल जाती है। लेकिन कॉर्निंग ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे दिया कॉर्निंग likely believed that as Moyle did that the market was mispricing its future performance and its future performance would considerably better. कॉर्निंग को अपने कंपनी पे भरोसा था कि मार्केट जो है अपने हमारे पोटेंशियल को मिस प्राइस कर रही है, मिस कैलकुलेट कर रही है, और हम जो है आगे जाके अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, जिससे हमारा रिटर्न ऑफ कैपिटल सॉरी या रिटर्न ऑफ कैपिटल बढ़ने वाला है। This question returns us to core strategic business concerns. If Corning believes that its work adds value to its product and that
it can protect its operation in a competitive environment. It should be confident that pricing pressures will be temporary. अगर किसी कंपनी को लगता है कि मेरा जो है स्ट्रेटेजिकली वी आर इन अ गुड पोजीशन, इन दैट केस वो क्या कर सकती है कि इट कैन होल्ड अप टू इट्स बिलीफ विदाउट सेलिंग, कि उनको अगर पूरा विश्वास है अपने फ्यूचर परफॉर्मेंस पे, तो वो क्या कर, देन ही दे इट इज वाइज टू नॉट ऑप्ट फॉर सेलिंग, क्योंकि आगे जाके हम जो है फायदा करने वाले हैं. Moyle agreed that there was price pressure. However, when he looked at the Corning's in-depth core cost structure, he saw that the pricing pressure could be offset or even improved by its cost structure. In other words, its margin could remain flat or expand. The market didn't see this, so the expectations that Corning's margins would continue to compress were negatively affecting the stock price. So कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या था कि उसका जो है प्राइसिंग में कुछ इश्यूज थी. सो मोयल जो हमारे एनालिस्ट है, उन्होंने भी एसेस करके देखा कि यार प्राइस प्रेशर जो है दैट इज इमेंस. लेकिन फर्दर उनको ये भी लगा कि आगे जाके कॉर्निंग के पास पोटेंशियल है इम्प्रूव करने का. ओके, लेकिन मार्केट इज नॉट एबल टू सी दिस. सो कॉर्निंग ने बाई उनके इन्वेस्टर्स को शेयर जो है बाई करने का वो दिया, रिकमेंड किया. उसके बाद पार्ट ऑफ द रीजन कॉर्निंग्स market value was below its book value was that investors believed that their margins would continue to compress, which Moyle disagreed with. Why do you think there is a tendency in forecasting to assume that current changes will continue indefinitely into the future? इस क्वेश्चन में कहता है कि कॉर्निंग का जो प्राइसिंग है, जो अंडर परफॉर्मेंस है, नॉट अंडर परफॉर्मेंस एक्चुअली, कॉर्निंग का जो शेयर प्राइस है वो इट वाज अंडर वैल्यूड बिकॉज लोगों को लगा या फिर इन्वेस्टर्स को लगा कि मार्केट वैल्यू जो है कम है बुक वैल्यू से, और आगे जाके ये कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज करेगी. सो क्यों ऐसा होता है कि लोग फोरकास्टिंग करते वक्त मतलब यूजुअली करंट चेंजेस को लेते हैं कंसिडरेशन में, और लॉन्ग टर्म चेंजेस को या फिर आगे जाके क्या होने वाला है इसको इग्नोर मारते हैं. तो इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन बता रहा है यहाँ पे, देखिए कि forecasting the future is inherently difficult and every decision the analyst makes carries the risk of being wrong. ओके, सो ऐसा नहीं है कि उनको मतलब एनालिस्ट, कोई गुड एनालिस्ट की कमी है या फिर ऐसा कुछ है, बट करेक्टली फोरकास्ट करना बहुत डिफिकल्ट काम है. ओके, इसलिए लोग जनरली रिसेंट ट्रेंड्स पे जाते हैं. यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, बायोजेन्स कैपिटल स्ट्रक्चर. सो बायोजेन क्या काम करती है कि in 2015, due in parts to low interest rate, Biogen took a 6 billion debt in order to repurchase 5 billion of its own shares. This changed its capital structure. The net effect would be similar to not issuing those shares in the first place and taking on debt instead of purchase asset. This share repurchase was a way of returning cash to shareholders and providing them with the more ownership after Bygone had grown significantly in recent years. तो बायोजन ने क्या किया कि 6 बिलियन का मार्केट डेप्ट उठाया 5 बिलियन के इक्विटी को रिपे करने के लिए, है ना. बट व्हाट, तो इससे क्या होगा कि शेयर होल्डर्स जो है उनको अपना पैसा वापस मिल जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को. बट व्हाट अबाउट डेप्ट? अकॉर्डिंग टू पॉल क्लांसी, बायोजेन सीएफओ एट द टाइम, टेकिंग ऑन दैट मच डेप्ट वाज रेयर फॉर द फार्मा कंपनी. तो बायोजेन एक फार्मा कंपनी है, फार्मा. At the time, it had only $500 million of debt on the balance sheet. However, like many other biotech companies, Biogen had cash trapped outside the United States that was inaccessible. So it had to take on some debt in order to execute the share repurchase. But it also took on more than it needed because interest rates were very favorable at the time. Since share purchases or acquisitions were in the pipeline, it wanted to lock in a good interest rate before rates rose. तो यहाँ पे बताता है कि बायोजन का जो डेप्थ स्ट्रक्चर था वो पहले सिर्फ $500 million था.
ओके, बट आफ्टर द रिसेंट डेप्ट जो उन्होंने उठाया $6 बिलियन का, तो उससे क्या हुआ कि कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि कंपनी जो है कैश ट्रैप थी, बिकॉज उनका जो कुछ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट था वो यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर थी और वो इनएक्सेसिबल बन गई थी। तो उनको कैश थोड़ा चाहिए भी था। ओके, उनको सबको रिवाइव करने के लिए, उन ऑपरेशंस को रिवाइव करने के लिए। सो दैट इज वाई, और तब इंटरेस्ट रेट जो है डेब्ट का वो कम चल रहा था कंपैरेटिवली। दैट इज वाई बायोजेन ने जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही डेब्ट उठा लिया मार्केट से। वाई वुड लो इंटरेस्ट रेट एनकरेज कंपनीज टू टेक ऑन मोर डेब्ट? तो लो इंटरेस्ट रेट कंपनीज को क्यों एनकरेज करती है डेब्ट, ज्यादा डेब्ट लेने से? The recent past has featured historically low interest rates. As such, firms may decide to lever up opportunistically in reaction to these conditions. The decision to time the issuance of equity or debt to market is known as market timing. In effect, firms are betting that they have ability to time when the issuance of security or share buybacks is most advantageous. तो सीधे शब्दों में कंपनीज जब लो इंटरेस्ट रेट होता है तब डेब्ट लेती है, ताकि उस डेब्ट के बदले लो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े, है ना? ये सीधा आंसर है। When investors purchase a share of stock in a company, they are making a bet that the company will perform better than its cost of capital, and what the stock will increase, and that the stock will increase in value by more than just its expected return. Here, Clancy is suggesting that the company buying back its own share is making a similar bet. Why? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछता है कि इन्वेस्टर्स जब किसी कंपनी का शेयर परचेस करते हैं तो वो बेट करते हैं कि कंपनी का आगे जाके जो है स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगी, जिससे उनका कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन क्लैंसी, जो बायोजेन के सीईओ सीएफओ है, वो क्या करे कि वो सिमिलर बेट लगा रहे अपने ही कंपनी पे। क्यों? वो इसलिए लगा रहे क्योंकि बाय स्पेंडिंग कैश टू रिपर्चेस इट्स स्टॉक द कंपनी इज मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। एज विथ मेनी इन्वेस्टमेंट, उनको अपना एनपीवी जो है उस इन्वेस्टमेंट का वो पॉजिटिव दिखा होगा, तो उनको लगता है कि ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये अदर इट इज बेटर देन द अदर ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ स्पेंडिंग दिस मनी, राइट? सो उनको इन सिमिलर, इन शॉर्टर वर्ड्स, उनको अपने कंपनी में पोटेंशियल दिखा होगा। दैट इज व्हाई दे थॉट कि नहीं, अभी अपने ही शेयर्स को बाई बैक कर लेते हैं, क्योंकि इसका दाम जो है आगे जाके बढ़ने वाला है ना? Do you think it is appropriate for Biogen to restructure its company through layoffs while simultaneously announcing a 5 billion share repurchase? Why or why not? तो यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या बायोजेन के लिए ये अप्रोप्रिएट है लेऑफ्स के जरिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, मतलब रिस्ट्रक्चर करना अपने कंपनी को, और साइमल्टेनियसली 5 बिलियन लोन लेना, 5 बिलियन शेयर रिपर्चेस करना। तो यहाँ पे आंसर क्या कहता है कि ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी वन हैंड, these are independent decisions. One is about making sure you are operating as effectively as possible and should be undertaken no matter what the financing decisions are. On the other hand, the coincidence of these occurrences will raise question about why more capital expenditures weren't a primary objective. Finance is at the crosshair of these decisions, making Clancy's ability to speak to capital market and to employees critical. CFOs increasingly play a central role because of the importance of the decisions and their own ability to address efficiency as well as capital allocation. तो यहाँ पे जैसे कि सवाल पूछता है कि मास लेऑफ्स और शेयर रिपर्चेस एक साथ करना क्या कंपनी के लिए अच्छा है? तो आंसर में कहता है कि ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन है। ओके, ऑन ये सी कंप्लीटली सीएफओ के पे डिपेंड करता है कि वो अपना जो है पैसा कहाँ पे डालने से ज्यादा प्रॉफिट निकालेगा। और ऑन द अदर हैंड, अगर ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, चूंकि ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, पहला कि ले ऑफ्स हो रहा है
जिसके जरिए कंपनी रिस्ट्रक्चर कर रही है अपने आप को, और साइमल्टेनियसली शेयर रिपर्चेस, इन दोनों का एक साथ करने का जो कोइंसिडेंस है, ये एक सवाल उठाती है कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा फोकस क्यों नहीं किया, क्योंकि कैपेक्स पे फोकस करने से जॉब क्रिएशन होता, उससे जो है ले ऑफ्स नहीं होने पड़ते। ओके, सो इसका आंसर तो वही दे सकता है जो वाई गुरु है, मतलब सीएफओ है कंपनी का, राइट? कि सीएफओ का सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कंपनी के रिसोर्सेस को अच्छे से एलोकेशन करे और कंपनी को फायदा ला के दे। हेनकेन बिल्डिंग अ मेक्सिकन ब्रूअरी। तो हेनकेन एक बियर का ब्रांड है। ओके, सो अब देख लेते हैं इसका क्या सीन है। इन 2015 हेनकेन decided to invest 470 million in a new brewery in Chihuahua region of Mexico. हम्म, तो ये केस स्टडी कहती है कि हेनकेन जो है एक ब्रूअरी है, तो उसने मेक्सिको में अपना जो है एक कंपनी को खरीद लिया। उस कंपनी का क्या नाम है? फेमसा, राइट? सो पहले एक, मतलब फर्स्ट लुक में ये थोड़ा अजीब सा डिसीजन लगता है मेक्सिको में अपना ऑपरेशन ओपन करना, बट अगर आप डिटेल्स में नजर डालें तो आपको लगेगा कि ये इन्वेस्टमेंट रैशनल डिसीजन था, है ना? क्योंकि मेक्सिको इज लार्ज मार्केट, काफी बड़ा मार्केट है, ट्वाइस द साइज ऑफ हेनकेन्स नंबर टू मार्केट, एंड द कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ इज ऑल्सो गुड, राइट? So all these facts motivated Henken to set up a Mexican brewery. डेमोग्राफिक्स भी जो है वो भी अच्छे थे। Young people in Mexico reached legal drinking age, they become consumers. Okay, Mexican and craft beers in the United States were also growing, while traditional beer market in United States was stagnant. So ये सारे फैक्ट्स जो है, ये दर्शाता है कि हेनकेन का जो इन्वेस्टमेंट है मेक्सिको में, दैट वाज अ रैशनल वन. Why do you think CFOs like Debrox tend to look at strategic concerns before they look at NPV of a project? If value creation means choosing projects with a positive NPV, what does strategic analysis achieve? तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के पहले एनपीवी ही देखना है कि एनपीवी पॉजिटिव है तो उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते क्यों हो, है ना? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने से आपको क्या मिलता है? तो strategic analysis can help CFO focus their attention on projects most likely to produce positive NPVs. तो strategic analysis हमें शॉर्ट लिस्ट करने में, प्रोजेक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, हम आउट ऑफ 100, लेट से हमें 100 प्रोजेक्ट्स में से हमें शॉर्ट लिस्ट करना है कुछ दो कंपनीज जो कि हमें पॉजिटिव नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू दे, या फिर टू कंपनीज विच वी वांट टू इन्वेस्ट। तो 100 कंपनीज में से सबसे पहले हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे। करने के बाद हम लेट्स से कुछ 20 कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं, तो उन 20 कंपनीज पे फर्दर हम लोग एनपीवी एनालिसिस करेंगे। एनपीवी एनालिसिस करने के बाद हम वी विल कम एट टू सच कंपनीज विथ द मोस्ट एनपीवी, सो वी विल इन्वेस्ट आवर एसेट्स, वी विल इन्वेस्ट आवर money on those two projects, right? So this is what it is about. When designing a new brewery, DeBrox needed to balance future capacity with the current cost of construction. Thinking about cost of capital and the time value of money, what do you think her concerns was? तो कहता है कि नया ब्रूअरी बनाते वक्त डेब्रॉक्स एको डेब्रॉक्स जो है, एक फ्यूचर कैपेसिटी और एक करंट कॉस्ट को बैलेंस रखते हुए एक डिसीजन लेना था। तो हमने पढ़ा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, तो हमें, मतलब हमसे पूछ रहे कि क्या लगता है उनका, जो डिब्रॉक्स है उनका क्या कंसर्न रहा होगा, राइट?
Henken would incur the cost to build the brewery now, while it would gain the benefits from increased capacity in the future. Cash flows far into the future when discounted might not be worth the expenses today. For this reason, Debrocks constantly needs to balance the increased cash flows of future capacity with the cost today. As she commented, when you look at the new brewery, you have the supply chain employees in the driver's seat, and they have so much experience in a company like Henken that they will tell you precisely how much the project is going to cost and how complicated it is going. तो उनका जो कंसर्न है दैट इज कैश फ्लोज जो फ्यूचर से आएंगे उनको अगर डिस्काउंट करे तो ये भी हो सकते हैं वो वर्थ नहीं होंगे, राइट? जो करंट एक्सपेंस है वो उसके मतलब उसके उससे अगर कंपेयर किया जाए तो इट इज पॉसिबल दैट कि उनका जो वैल्यू है वो दैट इज लेसर देन दी व्हाट द मनी इज वर्थ टुडे। तो इस वजह से डेब्रॉक्स जो है कॉन्स्टेंटली नीड्स टू बैलेंस द इंक्रीज्ड कैश फ्लोज। तो उनको जो है ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कैश फ्लोज को इंक्रीज करे ऑफ फ्यूचर कैपेसिटी विद देयर कॉस्ट टुडे, मतलब ज्यादा से ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश करे। और वो कमेंट भी करती है कि इफ यू लुक एट द न्यू ब्रूअरी यू हैव द सप्लाई चेन एम्प्लॉयज इन द ड्राइवर सीट। तो उनके न्यू नए जो ब्रूअरी है उनका एम्प्लॉयज जो है दैट इज उनके मतलब मेन रेवेन्यू जनरेटर है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कंपनीज लाइक हिंकेन को ऑपरेट करने का, कि वो इस काम में मदद कर सकते हैं, राइट? What if your forecasted cash flows are wrong? What if the brewery underperforms expectation? Think back to the lesson about sunk cost and Sakai plant at Sharpeville. What are options? कहता है कि व्हाट इफ अगर मतलब किसी भी नए प्रोजेक्ट पे को स्टार्ट करने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसके नेट प्रेजेंट वैल्यू को एक बार इन्वेस्टिगेट कर ले, है ना? तो हमें वो पूछ रहा है कि अगर कैश फ्लोज जो जनरेट कर प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज है या फिर फोरकास्टेड कैश फ्लोज है वो गलत है, इन दैट केस क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है? तो आंसर है कि इफ द ब्रूअरी अंडर परफॉर्म्स एक्सपेक्टेशन इट मे स्टिल हैव पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू। द कॉस्ट टू बिल्ड द ब्रूअरी आर सम कॉस्ट, so they should have no relevance for the decision on what to do with the brewery once it is built. Every decision whether to sell the brewery, modify its operation and so on is a new decision for which company should construct a new NPV. सो कहते हैं कि कैश फ्लोस अगर गलत भी हुए तो भी ब्रूअरी का जो एनपीवी है दैट विल बी पॉजिटिव, ओके? क्योंकि फैक्ट्री बनाने का जो कॉस्ट है वो सम कॉस्ट है और उनको दोबारा से कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। हम्म, और इसके आगे जितने भी नए डिसीजंस होंगे वेदर टू सेल द ब्रूअरी, मॉडिफाई करना, इन सब पर्पसेस के लिए अलग से नेट प्रेजेंट एनपीवी कैलकुलेट करना बनता है, राइट? तो एक बार क्विज को करने की कोशिश करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन? रिटर्न टू कैपिटल दैट एक्सीड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, return to capital that exists cost of capital, yes it is a source of value creation. Reinvesting profits to grow, yes it is a source of value creation. Gross profits, no it is not a source of value creation. Earning per share, no it is not a source of value creation. What is a beta? Beta क्या है? A return on equity, no. A measure of how much a stock moves with the broader market, yes. A measure of how much taxes affect a company's weighted average cost of capital, no. A measure of how much return on equity is higher than the cost of capital, maybe. Okay, okay. So हम सीधा सीधा चैप्टर समरी पे आते हैं। In this chapter, we have developed a number of difficult but foundational ideas. First, we identified where values come from.
तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है और वैल्यू क्रिएशन के लिए क्या जरूरी है। क्या जरूरी है कि सबसे पहले तो हम, हमारा जो रिटर्न रेट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द यू नो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे भी करके बीट करना पड़ेगा एंड वी हैव टू कीप डूइंग इट, राइट। वी हैव टू कीप डूइंग इट फॉर मेनी इयर्स टू कम। और हमें अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। ये तीनों हमने पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या मतलब है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मतलब है कि कुछ लोग डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट जो हम देते हैं, देने वाले हैं इन्वेस्टर्स को, उसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोग बोल देते हैं। बट it is a more complicated term because in order to properly calculate cost of capital by considering all the variables, we do it by calculating weighted average cost of capital. That says that for a given investment, you need to figure out what the debt and equity providers demand and average those costs of debt and equity by their weights. So weighted average cost of capital एक तरीका है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेजर करने का। और कैसे करते हैं कि हम डेब्ट और इक्विटी का जो पॉसिबल वेट्स है उससे मल्टीप्लाई करके हम एक परसेंटेज पे आते हैं, राइट। सो लेकिन वो वेट्स कैसे निकालते हैं, वो वेट्स इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। हम टैक्स के थ्रू एडजस्ट करते हैं उन वेट्स को कि अ, कितने हद तक जो है इंटरेस्ट रेट टैक्स रेट को सबस्यूम कर रहा है। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बारे में भी हमने पढ़ा कि the cost of equity aren't explicit. You need to rely on something to think rigorously about the costs. Because we live in a world with diversification opportunities, betas rather than volatilities of investment, best measure the risk presented by an asset. So capital asset pricing model एक ऐसा प्राइस मॉडल है जो डिटरमाइन करता है कि एक पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे कितना रिस्क है, राइट। और हम उसके लिए बीटास को यूज करते हैं जो कि एक रिग्रेशन एनालिसिस दिखाता है कि एक कंपनी का जो प्राइस स्टॉक जो है वो कैसा परफॉर्म करने वाली है ड्यूरिंग डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस, राइट। The final idea is that you have to use the WACC with care. It's not something that you can just export to other investment. You can't use the same WACC for all investment. Finally, you can't simply increase firm value by taking on more debt than the optimal capital structure. ओके, सो ये चीजें भी हमने पढ़ी कि यार WACC को थोड़ा संभाल के यूज करना पड़ता है। ऐसा मतलब WACC ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एक्सपोर्ट कर दो, राइट। या फिर ऐसा भी नहीं कर सकते कि सेम WACC को आप हर एक इन्वेस्टमेंट पे लगा रहे हो। ओके, और आप अपने जरूरत से ज्यादा WACC यूज करके जरूरत से ज्यादा डेब्ट भी नहीं ले सकते। तो ये तीन चीजों को भी ध्यान से कंसिडर करना पड़ता है, राइट। तो हम एक जल्दी से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। एक समरी का नोट जैसा बना लेते हैं। तो आई हैव समराइज्ड ऑल द इम्पोर्टेंट conclusions from this chapter. So as you can see that uh, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सोर्सेस ऑफ वैल्यू क्रिएशन। तो वैल्यू क्रिएशन के लिए तीन चीजें जरूरी है। फर्स्ट इज बीट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा है कीप बीटिंग फॉर इयर्स टू कम एंड थर्ड इज री इन्वेस्ट दिस प्रॉफिट। सो दूसरा है कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेथड, जिसको जिसको निकालने का फॉर्मूला है D/D+C, RD डेब्ट रेट
into 1 minus tax plus equity by debt plus equity into rate of equity. ओके, उसके बाद थर्ड में जो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, a method used to assess the cost of equity. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या है? a method used to assess the cost of equity. और कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू रेट ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, जो कि मतलब किसी बैंक या फिर गवर्नमेंट सोर्स में इन्वेस्ट करने पे जो रिटर्न मिलता है वो, प्लस बीटा इंटू मार्केट प्राइस प्रीमियम. सो बीटा क्या है? बीटा इज अ मेजर ऑफ शेयर परफॉर्मेंस विच मेजर्स रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ शेयर विथ मार्केट परफॉर्मेंस, कि मार्केट के अकॉर्डिंग शेयर का परफॉर्मेंस क्या कर रहा है. और मार्केट प्रीमियम, प्राइस प्रीमियम बेसिकली एक व्हाट यू कॉल एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है विच कंसिडर्स द क्रेडिट रेटिंग ऑफ और रिलेटेड रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट. और चौथा है, फोर्थ इज कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल यूजिंग डब्ल्यूएसीसी. दैट इज कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो डब्ल्यूएसीसी को यूज करने के लिए, मतलब कॉमन मिस्टेक्स जो है कुछ. फर्स्ट इज यूजिंग सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट. सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं यूज करना है. दूसरा इज इंक्रीजिंग डेप्थ फॉर रिड्यूसिंग डब्ल्यूएसीसी. इन डेप्थ को, मतलब डेप्थ बढ़ा के हम लोग डब्ल्यूएसीसी को रिड्यूस नहीं कर सकते. और तीसरा इज एक्सपोर्टिंग डब्ल्यूएसीसी. वी कैन नॉट रिड्यूस डब्ल्यूएसीसी बाय एक्सपोर्टिंग, और या फिर we cannot just buy out companies with high WACC because our capital cost of capital is lower, right? So these were the major learnings from this chapter. We are soon going to cover chapter 5. Yeah.